Repeating it once again. Steam, steam is heated with hot coke at 1270 to form water gas. Water gas is again heated in presence of uh, ferric oxide and chromic oxide as a catalyst. There is some steam which is present, as in water which is present. The water gas with water or steam reacts together to form carbon dioxide and hydrogen. The carbon dioxide is absorbed in water at 25 atm when water actually gets dissolved into, sorry, CO2 gets dissolved into water, absorbed into water to form carbonic acid. Carbonic acid. Uh, then it is again passed through ammoniacal cuprous chloride at 200 atm. Here all the CO, carbon monoxide left behind into the mixture will get absorbed, and what we are going to get is pure hydrogen. This method indeed is, or this accounts for, these two methods account for, or petrochemical, out of all hydrogen which is prepared, 77% of them come from method 1 and method 2. 77% comes from method 1 and method 2. Uh, Method 2 is more, that is always going to give us more, the purer form. Method 2 is going to give this one, this method is going to give us a more purer form of hydrogen. Okay. Coal say 18%, petrochemicals say 77, coal say 18%, electrolysis contributes 4% of the production, and other sources gives us 1%. I hope ये नोट कर लिया होगा हम लोगों ने. Next thing is physical properties of hydrogen. We have known this synthesis that it is colorless, odorless, tasteless, combustible gas, but non-supporter of combustion. Burning mastic वगैरह हाइड्रोजन फील्ड सिलेंडर या हाइड्रोजन फील्ड टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाएंगे तो ये mastic will went off or it will go off with a pop sound. ठीक है, तुरंत बुझ जाता है. It is non-supporter of combustion. However, अगर प्रॉपर फ्लेम हम क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर रखेंगे तो वो जलने लगेगा. इनफैक्ट वो बर्न होता है, हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग ऑफ. बट छोटी मोटी चीजें अगर ले जाके उसके एनवायरनमेंट में रखेंगे तो इट विल नॉट सपोर्ट हाइड्रोजन, सॉरी, इट विल नॉट सपोर्ट कंबशन और बर्निंग. It is less reactive. Hydrogen is less reactive, less soluble in H2O. I mean, it is less soluble in everything, being non-polar. ठीक है, or neutral in nature and much lighter than air. So these are some of the characteristic of or physical properties of hydrogen. The notable one is bad conductor of heat and electricity. In metallic state, hydrogen is obviously expected to be, being a covalent compound, it is expected to be a bad conductor of heat and electricity, and so it is. Apart from physical properties, the next thing which we need to understand is what are different forms of hydrogen. Okay. Forms of hydrogen के अंदर में we have there are 4 different forms of hydrogen which we are going to discuss. 4, 5 in fact, 2 को क्लब किया है साथ में.
The first one is isotopic hydrogen. There are three isotopes of hydrogen which you are seeing currently on your screen: प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में एक प्रोटियम का मास नंबर 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। दैट इज इट इज ओनली दिस हाइड्रोजन जिसके अंदर में न्यूट्रॉन मिसिंग होता है। इट इज ओनली दिस हाइड्रोजन जिसके अंदर में न्यूट्रॉन मिसिंग होता है। न्यूट्रॉन मिसिंग न्यूट्रॉन, ठीक है। ड्यूट्रियम 1H2, मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, इसमें एक न्यूट्रॉन रहता है। ट्रिटियम 1H3, दो नाइट्रोन दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ट्रिटियम में दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। और इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। इट इज 1 आउट ऑफ 10 to the power 18 प्रोटियम एटम पे ही मिलता है। ड्यूट्रियम रिलेटिवली हायर होता है ट्रिटियम के कंपैरिजन में। ट्रिटियम के रिगार्डिंग वन मोर इंफॉर्मेशन, दिस इज इट इज अ रेडियो एक्टिव। क्या होता है पता है हम लोगों को ना? रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप मतलब ऑल दोज आइसोटोप्स, अगर कोई भी आइसोटोप है किसी एलिमेंट का, इफ दैट इज रेडियो एक्टिव वी कॉल इट रेडियो आइसोटोप, ठीक है। सो इट इज अ रेडियो आइसोटोप। दिस इज नॉन रेडियो आइसोटोप, दिस इज अ नॉन रेडियो आइसोटोप। इट इज नॉर्मल आइसोटोप, ट्रिटियम इज रेडियो आइसोटोप। क्लियर है? ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम जो रहेंगे, ऑब्वियसली उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट रहता है। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट रहने की वजह से रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी डिफरेंस आता है, ठीक है। ड्यूट्रियम या ट्रिटियम प्रोटियम के कंपैरिजन में थोड़े हेवियर होते हैं। हेवियर होने की वजह से उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा slightly different होएगा from protium, and due to that slight difference of bond energy their reactivity is going to be bit slower than protium, ठीक है। not only bit slower, uh, मैंने क्या बोला? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा ना, ज्यादा ही बोला ना अभी। ड्यूटियम और ट्रिटियम का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, राइट? दैट इज व्हाट आई सेड। हेलो, मैंने यही बोला ना। हेलो, प्रोटियम के कंपैरिजन में ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। हेलो, आप सारे लोग सुन रहे हैं या सो गए हैं? यस सर। सर ओके। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का बॉन्ड एनर्जी जनरली ज्यादा होता है प्रोटियम के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से उसको डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा विगरस कंडीशन चाहिए होते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर कहीं पर बॉन्डिंग फॉर्म भी किया हुआ है, जैसे मान लो HCl है और DCl है, HCl और DCl, ठीक है। तो HCl की बॉन्ड एनर्जी हमेशा DCl के बॉन्ड एनर्जी से कम रहेगी। इज इट ओके? DCl will have greater bond energy compared to HCl. HCl का मान लो 50 किलो कैलोरी है, ठीक है, यहाँ 78 किलो कैलोरी है, तो DCl का बॉन्ड एनर्जी जो होगा that will be 78.6 78.8 किलो कैलोरी। सो थोड़ा डिफरेंट ये वाला रहेगा इसका बॉन्ड एनर्जी, नॉट ओनली इन कंपाउंड्स बट अमंग देमसेल्फ आल्सो। HH की बॉन्ड एनर्जी की जितनी वैल्यू होती है कुछ 64-65 किलो कैलोरी रहता है, ठीक है। और DD का बॉन्ड जो रहेगा that will again be 65 point something, 60.6 होता है या 65.8 होता है किलो कैलोरी।
So there is slight difference between bond energy of deuterium and hydrogen either in molecular form or in compounds. ठीक है, the impact is something which I am going to or which you are going to see right now. और अच्छा, कि ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो मान लो दो चीजें होती हैं। पहला तो ये होता है कि रिएक्टिविटी जो होगी ना ड्यूट्रियम की कंपेयर टू हाइड्रोजन दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। दिस इज गोइंग टू रिएक्ट एट अ स्लोअर स्पीड कंपेयर टू हाइड्रोजन। काइनेटिक्स में वी विल सी दैट जिनका भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा उन सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी जनरली कम होती है। और देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ये एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। उतनी एनर्जी जब तक उनको मिलेगी नहीं तब तक वो एक्टिवेट होकर के रिएक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं। सो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है, दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी हायर D2। ये रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या सेम रेट पर कंडक्ट करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड हाँ, order of reactivity is going to be HTT. H is going to react at the fastest rate, uh, followed by D, followed by T. That's true. ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बॉन्ड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर क्या है? E is greatest followed by D followed by H। बॉन्ड ये रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, या फिर सिंपली बॉन्ड एनर्जी BE और BE बॉन्ड एनर्जी ट्रिटियम ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन आफ्टर बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी। इसका इम्पैक्ट बेसिकली ये होता है ना कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है और एनवायरनमेंट में ड्यूट्रियम या ट्रिटियम प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन विल स्लोली एंड स्लोली गेट रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाएगा? ड्यूट्रियम कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा उसका फॉर्मेशन फेवर्ड होएगा, दैट विल बी फेवर्ड। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव उसके केस में रहेगा और जिसके लिए ज्यादा निगेटिव डेल्टा जी रहेगा वो वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अगर दो तीन चार प्रोडक्ट के फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है तो प्रोडक्ट वो वाला मेजर क्वांटिटी में फॉर्म करता है जिसका डेल्टा जी ज्यादा है। ठीक है ना? तो सॉरी, जिसका डेल्टा जी कम है, फ्री एनर्जी जिसका कम है, डेल्टा जी जिसका सबसे कम होगा, राइट, फ्री एनर्जी जिसका सबसे कम होगा यानी जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा फॉर्मेशन के टाइम पर, दैट इज वन व्हिच इज गोइंग टू बी फेवर्ड। मेकिंग सेंस? नेक्स्ट थिंग इज we have some deuterium का preparation methodologies and then utilities we have physical properties and chemical properties is what we have discussed. I have discussed. So just a quick look at it. The methods of preparation are separation from ordinary hydrogen. Ordinary hydrogen say uh, Urey's method. ठीक है? Uh, evaporation of liquid hydrogen near its triple point 13.9
Kelvin under reduced pressure. इसके थ्रू बेसिकली यूरेज ने he has separated hydrogen and deuterium. So it's like 4 liter of hydrogen gives around 1 ml of concentrated deuterium in this process. Evaporation of liquid hydrogen near its triple point 13.9 Kelvin under reduced pressure leads to separation of deuterium with leads to separation of deuterium. Second one is by successive diffusion. हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम साथ में प्रेजेंट होंगे मिक्सचर में, मल्टीपल डिफ्यूजन स्टेजेस के थ्रू पास करके उसको ड्यूट्रियम का हम कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, राइट. द वे लिफ्ट बिहाइंड गैस के अंदर में ड्यूट्रियम का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा. We know that rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular mass or density. So deuterium being more denser or heavier, that diffuses at slower rate compared to hydrogen, which diffuses faster. So multiple diffusion steps अगर हम करते हैं तो एक सिस्टम के अंदर में हाइड्रोजन प्रोटियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा, और दूसरे वाले में द रिमेनिंग पार्ट में ड्यूट्रियम जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, and it will increase to be, it can be made to increase to a good amount. Okay. Second one is by selective absorption of of protium on charcoal leaving behind deuterium. ठीक है. Protium being lighter absorb more readily and strongly on charcoal. So selective absorption of protium on charcoal is something which is also deployed to separate deuterium from protium. Second method of preparation is via from heavy water. Heavy water is D2O. Heavy water is D2O. हेवी वाटर का फॉर्मूला D2O है और मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा 20 AMU. मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 20 AMU या 20 ग्राम. एक मॉलिक्यूल का वेट 20 AMU, एक मोल मॉलिक्यूल का वेट 20 ग्राम. ठीक है. इसमें हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम और इसी की वजह से इसको हेवी वाटर बोलते हैं. Is it okay? So once we react heavy water with sodium or potassium reactive metals, it is going to react like this. Water भी इनके साथ इसी तरीके से react करता है. Water को भी अगर सोडियम या पोटेशियम के साथ react कराएं हम, they are going to react like this only, forming प्रोटियम वाले का रिएक्शन कराते हैं तो यानी नॉर्मल वाटर का कराते हैं तो वी हैव NaOH एंड हाइड्रोजन. ड्यूट्रियम का ऑक्साइड का कराएंगे D2O का, वी आर गोइंग टू हैव NaOD प्लस ड्यूट्रियम. हेवी वाटर से रिएक्शन कराएंगे अल्कली मेटल्स स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम, वी आर गोइंग टू हैव their hydroxide, ठीक है, deuterated hydroxide and deuterium. Similarly, red hot iron or tungsten, iron या tungsten, red hot iron या red hot tungsten के ऊपर से अगर हम पास करते हैं D2O को, we again have formation of deuterium from both these processes. ठीक है. The method is, it has been highlighted over here. Iron has to be red hot,
D2O has to be in vapor phase, high temperature treatment रहता है ये, Fa3O4 plus is the reaction which we get. टंगस्टन के ऊपर D2O पास करते हैं at 100 degree 1000 degree Celsius. We again have tungsten oxide and deuterium. The tungsten is generally heated electrically. थर्मल हीटिंग नहीं होती, सॉरी थर्मल मतलब पायरो हीटिंग नहीं होती है, फायर के थ्रू नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है. Then the third method is electrolysis of D2O, aqueous या फिर सॉरी aqueous बोल रहा हूँ, अल्कली या फिर एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन या फिर एसिडिक मीडियम. केमिकल इलेक्ट्रोड एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम. The physical properties of deuterium is just like hydrogen. Most of them are like hydrogen only, except that deuterium is going to react at a slower pace compared to hydrogen. That's in chemical properties. Physical properties लगभग similar हैं दोनों के. There is no difference. Physical properties no difference except density is twice. That is, deuterium is going to be heavier than protium. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ड्यूट्रियम स्लोअर रिएक्ट करेगा और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट विल बी मोर कंपेयर टू हाइड्रोजन. कोई भी रिएक्शन अगर उसका हो रहा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी मीट कर गया, तो द रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड रिएक्शन विल टेक प्लेस एट स्लोअर रेट बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है, equilibrium will be more towards right in case of deuterium compared to hydrogen. Are we getting this? So generally extent of production जो होता है, किसी भी कोई भी कहीं भी रिएक्शन हम करा रहे हैं ड्यूट्रियम के साथ, the extent of production जो होएगा that will be always higher with deuterium compared to protium. एक्सचेंज रिएक्शन, कहीं पर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है और एनवायरनमेंट में ड्यूट्रियम पड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन will always get replaced by deuterium. ठीक है, provided we are providing sufficient, the threshold energy is being met. Threshold energy met करेगा तो bonds will dissociate, D2 bonds will dissociate to form D and hydrogen will be replaced from its compounds by deuterium. To form deuterated compounds, hydrogen will be replaced. Am I making sense? Primarily ये इसीलिए होता है क्योंकि equilibrium constant of these compounds are going to be higher as these compounds are more stable compared to hydrogen containing or protium containing respective compounds. Making sense? Uses, preparation of deuterium compounds. Deuterium uses. It is done in tracer studies. ट्रेसर स्टडीज का मतलब होता है, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सर पढ़ा रहे होंगे ऑर्गेनिक में, राइट? ये रिएक्शन मैकेनिज्म डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है, दैट हैपेंस टू बी और दैट इज पार्ट ऑफ काइनेटिक्स. काइनेटिक्स के अंदर में थोड़ी थोड़ी चीजें, इन चीजों का क्लिप्स मैं आप लोग को दूंगा. बेसिक इक्वेशंस, बेसिक रिएक्शंस जो हैं उनके रेट कैसे डिटरमाइन होते हैं, इसके ऊपर कुछ लॉजिकल पॉइंट्स और लॉजिकल मेथड्स we will discuss with suitable examples when we will be doing kinetics. और उस टेक्निक या उस प्रोसेस को करने में एक मेजर या प्रिंसिपल रोल जो हम बोल सकते हैं, दैट इज ऑफ दिस टेक्निक, ट्रेसर स्टडीज या ट्रेसर टेक्निक. ट्रेसर टेक्निक में करते क्या है, बेसिकली एक बार हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और
साथ में कुछ ड्यूट्रियम कंटेनिंग कंपाउंड को भी डालते हैं या ड्यूट्रियम कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म कराते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एंड दोनों के रिएक्टिविटी रेट या पोजिशनल अटैचमेंट रेट को एनालाइज करके, and we try to differentiate कि which bond would have been breaking or which bonds are being formed and how are they being formed. How are they being formed मतलब, yes, there is some logical approach through which we can ascertain that okay, only this bond is breaking or only this bond is not breaking. ठीक है, ये समझना and logically establish करना is something called reaction mechanism. ठीक है, so it plays a very significant and important role in tracer studies in order to devise or develop the mechanism of various organic reactions. That is one of its key applications. Or it is also used as bombarding agent in artificial transmutation. सोडियम ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है पता है ना या नहीं पता है? हेलो. No, sir. Okay. Transmutation is a nuclear reaction. It's a nuclear reaction जिसमें न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करता है. यहाँ पर सोडियम 23 का न्यूक्लियस हाइड्रोजन 2 के न्यूक्लियस ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कर रहा है in order to produce one of the isomers of sodium 2411 sodium. Okay. And then hydrogen. Similarly, 16O8 हाइड्रोजन के साथ ड्यूट्रियम की बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर. इट क्रिएट्स नाइट्रोजन 14 एंड हीलियम. So transmutation is a process in which, or it is a nuclear reaction in which one nucleus is converted into nucleus of another element. Transmuted, one of the nucleus is transmuted to another or changed to another nucleus or nucleus of other element by treatment with or by uh, bombarding it with deuterium by bombarding it with other element, and it is not only deuterium. So basically transmutation is changing one nucleus into other nucleus. एक एलिमेंट से के न्यूक्लियस से दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस को में कन्वर्ट करना इज ट्रांसम्यूटेशन. ठीक है. Sir, in the second reaction, it like changed from oxygen to nitrogen and from hydrogen to helium. Why did not that happen in the first reaction? Why it did not happen in the first reaction? See, nuclear reactions में there is just not only this product which is going to form. यहाँ पे जो दिख रहा है सिर्फ यही product form नहीं होएगा. There are multiple things which can be formed. ठीक है. One of the reaction is this. Important is not कि ये reaction हो रहा है. Important is this. This brings a change into the nucleus. ठीक है. 24 नाइट्रोजन जो सोडियम जो हमें दिख रहा है ये सिर्फ 24 सोडियम ही नहीं होगा. यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट जो होगा वो तुम्हारा मैग्नीशियम 24 एंड न्यूट्रॉन भी रहेगा. वन ऑफ इट्स आउटकम इज गोइंग टू बी Mg2412 एंड न्यूट्रॉन भी रहेगा. ठीक है, नो डाउट अबाउट इट. अब इन दोनों में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा एक तो एनर्जी कंसिडरेशन हमको बताएगा, और दूसरी चीज कंडीशंस भी कभी कभार बताते हैं. जैसे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ये रहेगा तो ये वाला शायद फॉर्म करेगा,
रिलेटिवली कम एनर्जेटिक रहेगा, ये फॉर्म करेगा. सो सी यहाँ पर द आइडिया इज नॉट कि whether it is only this which is being formed. No, the idea is it can make this conversion happen. That is more important. बात समझ में आ रही है. और इस रिएक्शन ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस हम कहीं पर भी देखेंगे एक्सेप्ट 2 और 3 रिएक्शंस ट्रांसम्यूटेशन के. और they are not like chemical reactions. They are not like chemical reactions. Neither they are controlled one. ठीक है. ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, नेचुरल कंट्रोल में होता है. वी कैन नॉट कंट्रोल देम. क्या फॉर्म करते हैं क्या फॉर्म नहीं करते हैं वो हम डिक्टेट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं. हम सिर्फ इनिशिएट कर सकते हैं, कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं रिएक्शन के होने के लिए. द रिएक्शंस आर गोइंग टू हैपन ऑन देयर ओन. और क्यों होता है दैट कैन बी आंसर्ड टू अ वेरी ये क्या बोलता हूँ स्मॉलर ये तक, तो एक्सटेंट तक मैं इस तरीके से आंसर कर सकता हूँ इसको. एक n बाई पी रेशियो करके चीज होती है, n बाई पी रेशियो, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो. बट इसमें एक्चुअली ये अनस्टेबल एंटिटी ही बना रहा है. 2311 से 2411 में कन्वर्ट होना है, इसका ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ रिलेटिवली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एंटिटी. ठीक है, रेडियो एक्टिव एंटिटी में इसको कन्वर्ट कर रहा है. 24 सोडियम इज गोइंग टू बी रेडियो एक्टिव, 23 सोडियम जो होगा वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा. तो स्टेबिलिटी को n बाई पी रेशियो के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं. और ये चीजें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पार्ट में और काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. कुछ और भी छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक नंबर. दीज आर फ्यू थिंग्स जिसके बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन किया जाता है. ठीक है ना. और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही वाला फॉर्म होता है, ये वाला भी फॉर्म होता है. देयर आर पैरेलल रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस. ओवर हियर एक रिएक्शन लिखने के पीछे हमारा मेरा पर्पस या पर्पस जनरली ये होता है to illustrate to you that nuclei can be or elements can be changed from one to another through nuclear reaction, or they are changing, that is transmutation is taking place. So the idea is that, or the focus is at least that. ठीक है ना. Used in fusion reaction in hydrogen bomb. Again stability के regarding कौन सा ज़्यादा stable है कम stable है, we'll be discussing that in kinetics, radioactivity and kinetics जब कर रहा हूँ उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आखिरी में करूँगा. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में I'll be discussing this stability part of a nucleus. Stability of a nucleus को न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर में we will discuss, and it will also be discussed in case in modern physics too. So used in fusion reaction. वैसे एक चीज और जस्ट छोटा सा डिस्क्लेमर, न्यूक्लियस के बारे में हम हमारी अभी भी आज भी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है. और काफी सारे प्रेडिक्टिव चीजें हैं जो कि न्यूक्लियस के बारे में हम जानते हैं. वी आर doing our level best to understand it more and more, but our knowledge is still quite limited when it comes to nucleus. मतलब ऐसे समझो कि आज से 70 साल पहले 80 साल पहले तक हमें जो चीजें पता है हम उसी पे आज भी सर्वाइव एंड ड्वेल कर रहे हैं. There has not been a good significant research in the field of nucleus which has taken place since last 60-70 years. Used in fusion reaction in hydrogen bomb. ठीक है, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर में कंबाइन करके हीलियम एंड न्यूट्रॉन बना रहे हैं, साथ में बहुत सारा एनर्जी बना रहे हैं. ठीक है. एक्चुअली ये रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं. दिस इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन.
दो हाइड्रोजन मिलकर के एक ड्यूटेरियम बनाता है और न्यूट्रॉन बनाता है। फिर तुम्हारा एक ड्यूटेरियम और एक फिर से प्रोटियम मिलकर के ट्रिटियम बनाता है। फिर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिल करके हीलियम बनाया। हीलियम हीलियम या फिर ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन करके और हायर एलिमेंट्स को बनाता जाता है। दैट इज व्हाट द चेन रिएक्शन इन stars are all about. The source of the real source of energy in the universe are stars, and the reason for their continuous burning is these type of chain reactions where hydrogen is getting converted into helium. Helium and then is then converted into higher elements, ठीक है, और higher nuclei बहुत ज्यादा हायर हो जाते हैं तो फिर स्टार डाई डाउन कर जाता है। ठीक है, आयरन तक जब पहुंच जाएगा रिएक्शन इस तरीके से किसी भी स्टार का तो स्टार जनरली मर जाता है। डेथ ऑफ द स्टार वाइट डार्क फेज में आकर के मर जाएगा या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होकर के ब्लैक होल पे एंड होएगा, बट एंड हो जाता है। दैट्स द पॉइंट। तो द लास्ट वन इज ट्रिटियम। रेडियो आइसोटोप है ये, बहुत ही कम मिलता है। Naturally occurs in upper atmosphere and formed naturally by this reaction. You get 12C plus tritium 1, nitrogen 14 plus 1 neutron, and neutron, the source of neutron is, it is arriving from space. नहीं, n is neutron. n यहाँ पर भी देखे ना, n01, this is neutron. p11 या फिर 1h1 जहाँ पर देखें, it means proton. न्यूक्लियर रिएक्शन जब लिख रहे होते हैं 1h1 या 1p1, mass of proton is 1 and charge on proton is 1, ठीक है, 1p1 या सिंपली p लिख देते हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दैट इज 1h1 लिखते हैं हम लोग। दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखना होता है तो 0 1 लिखते हैं, 0 एक्चुअली -1 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये और इलेक्ट्रॉन के लिए नोटेशन, और 0 + 1 जो होता है ये पॉजिट्रॉन का नोटेशन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, बीटा प्लस पार्टिकल, और ये बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है। The neutron which is consumed in this reaction is coming from outer space. It is coming to Earth's environment from outer space, primarily released somehow nearby environment में कोई और reactions हो रहा है, वहां से फ्लाई अवे करके न्यूट्रॉन्स आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, घुसते हैं और वो अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन और ट्रिटियम बनाते हैं। अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, bombarding deuterium with another deuterium molecule produces this and protium, ठीक है। Other nuclear reaction, there are set of nuclear reactions which are going to produce, अच्छा देखो important चीज क्या है, जब ये लिखवाया तो आपको पता भी चला ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं। नाउ द पॉइंट इज, डू यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दैट, और द आंसर इज नो, ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट। दिस इज जस्ट एन आइडिया विच यू आर गेटिंग, और रिएक्शंस क्या होंगे, कैसे होंगे, ठीक है ना। अगर कुछ की रिएक्शंस रहेंगे
तो दैट विल बी हाईलाइटेड। अदरवाइज एक बार न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा लोगे, ट्रांसम्यूटेशन वगैरह या न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होते हैं, मास बैलेंसिंग ये शायद पता भी चल रहा होगा, 9 2 11 4 1 5 इधर का बैलेंस करेंगे 8 3 11 4 1 5। तो बेसिकली चार्ज एंड मास बैलेंसिंग में न्यूक्लियर रिएक्शन सारे होते हैं, ठीक है। चार्ज एंड मास बैलेंसिंग में सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन को मिसिंग करा देना तब भी आप गेस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सम ऑफ मास एंड सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कि कौन सा एंटिटी मिसिंग है। एम आई मेकिंग सेंस? तो जनरली इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं आपसे, नॉट दीज यूनिक रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। So they have been given here just to make or give you a glimpse of what is there or what is happening. Is it okay? Yes. Something which is good and important for us, just to have a comparative idea, just to have a comparative idea of uh, different parameters for hydrogen, deuterium and tritium. ये तीनों के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स जो है उनका क्या वैल्यूज है उसको कंपेयर करने के लिए दिस टेबल इज क्वाइट नाइस एंड देयरफॉर आई कैरिड इट आउट और कैरिड इट आउट। एक परसेंटेज मुझे चेंज कर देंगे। ठीक है, लॉजिक 156 पे ये 100% के ऊपर चला जाता है। इनफैक्ट कॉपी किया था, गलत हो गया। The relative masses, melting point of three compounds, जिसका मास ज्यादा है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, डेंसिटी तो ज्यादा है ही, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है, मास के हिसाब से बढ़ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का ज्यादा और ट्रिटियम ट्रिटियम का और ज्यादा रहेगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा एच एच के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस या डी डी के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये लगभग सेम है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज सेम। दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी नोटेड एज इन आप दिमाग में हाईलाइट करके रखोगे इस बात को जब टेबल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। बाकी सारे as per the mass graded हो रहे हैं। This is something which is constant with respect to radius, with respect to mass, ठीक है। So this is something जो कि आपको ध्यान में दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट्स वगैरह फॉर्म करेंगे ना एमसीक्यूज में, तो इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस, ठीक है। एक स्टेटमेंट उसमें ये अगर, क्योंकि ये डिस्टिंक्टिव है, नेचर के अगेंस्ट जाके हो रहा है, नेचर के अगेंस्ट का ट्रेंड के अगेंस्ट। जनरल ट्रेंड ये है कि सारी चीजें मास के ग्रेडेशन प्रोसेस में चल रही है। यहाँ पर मास के ग्रेडेशन प्रोसेस में शायद इसको कम हो जाना चाहिए था, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, इट इज रिमेनिंग सेम। सो दैट इज समथिंग which has to be accounted or which has to be remembered। या बढ़ना चाहिए था, बट दैट इज सेम। एक्चुअली बढ़ना चाहिए था, छोटा नहीं होना, सेम नहीं रहना चाहिए था, छोटा नहीं होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। दैट्स नॉट हैपनिंग एनीवे। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम रहता है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ड्यूटेरियम विल बी स्लाइटली हायर
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, ये वैल्यूज दी नहीं हुई है, बट ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट नहीं रहती है। कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस डिफरेंट नहीं रहेगा क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है दोनों केस में, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं रहेगी। बट आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होते हैं इसके कंपैरिजन में, एंड ड्यूट्रियम के वैल्यूज आर गोइंग टू बी हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू। Am I making sense? Ionization enthalpy of deuterium is going to be, यहाँ पर 1312 है तो इसका 1318 या 1320 के आसपास में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -73 जो है वो यहाँ पर -75 के आसपास रहेगा। So it will be slightly more compared to that of protium. Making sense? Yes, sir. Okay. The second type of so these were isotopic hydrogens or on property comparison. The second type of hydrogen or the second type of hydrogen should be a nascent hydrogen or and atomic hydrogen. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लगभग सेम होते हैं, दोनों में एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन रहता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी रहता है, ठीक है। और एक बहुत हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होता है, दूसरा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी फॉर्म हो जाता है। एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू फॉर्म होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू हायर टेम्परेचर से फॉर्म होता है। So nascent hydrogen is this, or atomic hydrogen is simple hydrogen atom, not molecular hydrogen, rather simple hydrogen atom. ठीक है, यहाँ पर भी ये simple hydrogen atom ही है. The only thing is this is being produced through a chemical reaction, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वो रिलेटिवली कम रहता है। रिलेटिवली कम रहता है मतलब इनफैक्ट बहुत कम रहता है। रूम टेम्परेचर पर nascent hydrogen can be formed, whereas atomic hydrogen cannot be formed at room temperature. We require very high temperature in order to form atomic hydrogen. ठीक है, nascent का मतलब newly born होता है, nascent means newly born. That's typical meaning. Atomic hydrogen, hydrogen in atom form, single hydrogen atom in and hydrogen in a single hydrogen atom form. That's atomic hydrogen. Formed at nascent hydrogen, formed at room temperature, formed at very high temperature, formed during chemical reaction, formed by breaking the dihydrogen through electric discharge. Okay, एक second. हेलो हेलो, ध्यान है सभी? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। nascent hydrogen and atomic hydrogen दोनों दोनों atomic form ही होते हैं. The way in which we are preparing or the energy which they possess is different. ठीक है, इसलिए इनको different नाम दिया गया है. However, दोनों ही cases में we have hydrogen in atomic form. पहले वाले में nascent hydrogen case में the evolution is from a chemical reaction, whereas atomic hydrogen का formation is via electrical discharge. ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब H2 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में that breaks down into hydrogen atoms. This process generally takes place at high temperature, ये room temperature पर होता है, और
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, अब क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये होता है तो इसके पास एनर्जी कंटेंट ज्यादा रहेगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास एनर्जी कंटेंट रिलेटिवली कम रहेगा, इसके कंपैरिजन में इसमें एनर्जी कम रहेगा नेचेंट हाइड्रोजन के पास में। क्यों? क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस है, ठीक है, या इसका फॉर्मेशन कम टेम्परेचर पर हो रहा है। हेलो हेलो, Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ठीक है sir. ठीक है Yes, ठीक है। sir. नहीं वो मुझे नेसेंट हाइड्रोजन और एंड एटॉमिक हाइड्रोजन, इन दोनों में लाइक ये रहता है, ये दोनों सिंगल हाइड्रोजन एटम जो होते हैं दे आर गोइंग टू हैव रिड्यूसिंग टेंडेंसीज, ये दूसरे के साथ रिएक्ट करके उनको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि नेसेंट हाइड्रोजन एंड एटॉमिक हाइड्रोजन, both of them are both of them has very high reducing tendencies, ठीक है। Compared to dihydrogen, they are very effective reducing agents। और कंपैरिजन जब करते हैं तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जो होता है वो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, उससे कम होता है हमारा ये नेसेंट हाइड्रोजन, और डाई हाइड्रोजन बहुत कम होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। Dihydrogen is very less reactive or very I mean it has very low reducing capabilities compared to nascent hydrogen or active hydrogen. Am I making sense? This has very good better than very good reducing tendencies. It has better tendencies than dihydrogen. Active hydrogen में it has better tendency of reducing compared to nascent hydrogen. For the simple reason, this is a uh, high energy atom, ठीक है। This single atom has or is going to have very high energy content, and therefore it is going to be more reactive। Next thing is एटॉमिक हाइड्रोजन जो है उसको आइसोलेट करके हम रख सकते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन को हम आइसोलेट करके नहीं रख सकते। द मोमेंट इट इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड, अगर कहीं और हमने यूटिलाइज नहीं किया तो ये इमीडिएटली आपस में रिएक्ट करके डाइहाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है। फॉर द सिंपल रीजन, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ये फॉर्म होता है, तो कम टेम्परेचर पर इनको दूर दूर रखने के लिए, एक दूसरे से दूर रखने के लिए, सच दैट बॉन्ड फॉर्म ना हो जाए, ठीक है। और हमारे पास एम्बिएंट कंडीशंस नहीं होते हैं, लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर इन एटम्स को सेपरेट करके रखने की एम्बिएंट कंडीशंस हमारे पास नहीं होती। ऑन कॉन्ट्रेरी, हायर टेम्परेचर्स पर, वेरी हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पर या हायर टेम्परेचर पर अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम को भी रखते हैं, सिंगल हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स को अलग अलग करके रखते हैं, तभी उनमें बैक कन्वर्सन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ hydrogen atom and hydrogen atom to produce a helium atom or anything like that may not be taking place or must not be taking place, rather we can say। Am I making sense? And therefore ये atomic वाले केस में atomic hydrogen can be isolated, whereas nascent hydrogen this cannot be isolated। Atomic hydrogen primarily used in building processes। यहाँ पर दो रिएक्शंस दिया है मैंने जस्ट टू इलस्ट्रेट द रिएक्टिविटी, जैसे FeCl3 ग्रीन एक्वस करके और थोड़ा सा H2 से H2 अगर हम पास करते हैं इसके ऊपर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन विल रिमेन ग्रीन। बट वही नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन को हमने पास किया इसके ऊपर से, वी आर गोइंग टू हैव
This will transform into colorless entity and HCl. Light yellowish system will get generated. Similarly, KMNO4 H2SO4 के साथ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में there is no reaction. KMNO4 H2SO4 in presence of nascent hydrogen or atomic hydrogen, we have K2SO4, MnSO4 and H2O2 being formed. It is again a colorless solution. यानी ये reaction जो है ये तभी होंगे. It is going to take place only in presence of nascent or atomic hydrogen and not in presence of normal diatomic hydrogen. Is it okay? Fine. The next type is occluded hydrogen. Occluded hydrogen का मतलब होता है adsorbed hydrogen. Adsorbed hydrogen surface chemistry में occlusion process के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. बेसिकली होता है ऐसा है कि मेटल सरफेस के ऊपर hydrogen being a small gaseous molecule that comes and gets attached on the metal surface. ठीक है, rough metal surface यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाता है. There should be 2H2SO4. there can be 2H2SO4. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बैलेंसिंग थोड़ी कर रहा है तो उसके हिसाब से तो फिर इधर भी हम लोग को डालना पड़ेगा ना. I'm not showing a balanced equation as yet. I'm more interested into reactant and product. ठीक है. So अभी ऑक्लूजन प्रोसेस सिखा रहा था मैं. ऑक्लूजन प्रोसेस के लिए एक चीज और रिस्पॉन्सिबल होता है. केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था तो मैंने ऐसा कुछ बताया था पोलैरिटी वगैरह के बारे में. हाइड्रोजन इज सॉरी हाँ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल जो है उसके पास भी डायपोल मोमेंट होता है. ऐसा कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने एक किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सेंटेंस को डिस्कस किया था. याद है हम लोगों को? अच्छा चलो छोड़ो. मुझे ये बताओ ये मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटरेक्शन होते हैं, एटम के बीच के जो इंटरेक्शन होते हैं उससे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है. और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वो कितने टाइप के होते हैं? कैन वी नेम देम? केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कितने टाइप के होते हैं. वेरी गुड. केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स हैं हम लोगों के पास. कल थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग आएंगे. ओके 5 टाइप के होते हैं. वेरी गुड. बोलो इफ यू रिमेम्बर. बाकी लोग प्लीज रिवाइज द नोट्स. हाइड्रोजन फोर्स. हाँ डाइपोल ठीक है. डाइपोल आयन ठीक है. इंड्यूस्ड डाइपोल ठीक है. और वैंडरवाल फोर्स. हाँ यही वैन डर वाल्स फोर्स है.
इंड्यूस्ड डाइपोल एक्चुअली सारे ही लो वाले जितने होते हैं ना, इंक्लूडिंग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन आयन नहीं होता है मॉलिक्यूलर में, वो सिर्फ वहां पे रहता है, वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, दैट स्ट्रॉन्गर वन। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एक बॉन्ड है, वो मिस किए हो तुम भी। और इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। ये पांचों टाइप जो होते हैं, इनमें से इन पांचों को हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर लेते हैं, ठीक है। और आयन आयन को नहीं लेते हैं, इसको आयन इज नॉट पार्ट ऑफ इट। पांच जो होते हैं वो होते हैं, आयन से शुरू करते हैं तो आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। फिर डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे आखिरी वैरायटी होती है वो होती है इंड्यूस्ड डाइपोल को एक्चुअली हम लोग लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, और वो सबसे कम और सबसे छोटा होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल के थ्रू ही एक्चुअली हम लोगों ने हाइड्रोजन के अंदर जो पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और वो हमने नहीं किया है, वो दैट इज अ फैक्ट व्हिच हैज बीन फाउंड आउट। When hydrogen molecule is not 100% non-polar, generally एकदम symmetric molecule है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, so there is no need of polarity, or there should not be any tendency of polarity. सेम एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोलैरिटी किस बात का, बट इस केस में हाइड्रोजन वाले केस में होता है, और ये प्रोमिनेंट भी होता है, ठीक है ना। प्रोमिनेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ओवरऑल और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि पूरा स्फेरिकल एटम है, और मान लो न्यूक्लियस के लेफ्ट साइड में अगर हाइड्रोजन आ गया तो डाइपोल लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और जब वो राइट साइड में जाएगा तो राइट साइड में डाइपोल हो जाएगा, ठीक है। यानी डिस्टिंक्टिव डाइपोल दोनों इंस्टेंसेस पे क्रिएट हो रहे होंगे, मेकिंग सेंस। Obviously it will be happening for a very temporary or very small time frame. That is why it is called as transient polarity, ठीक है। और ट्रांजिएंट पोलैरिटी के थ्रू हम लोग बोल रहा था, हाँ, ये पॉइंट एडजॉर्प्शन बेसिकली मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। सो हाइड्रोजन के अंदर में क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर में ट्रांजिएंट पोलैरिटी रहती है, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल वाली ट्रांजिएंट पोलैरिटी रहती है। आई होप वी आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। ये न्यूक्लियस है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, तो जब इधर है तो डाइपोल इसका मोमेंटली डाइपोल इस तरफ इस डायरेक्शन में हो गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन घूम करके इधर आया तो इस डायरेक्शन में हो गया। तो एवरी सेकेंड किसी ना किसी डायरेक्शन में रहेगा एक का, और सिमिलरली दूसरे का भी, दोनों का मिला करके हर टाइम पे कुछ ना कुछ एक नेट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल थोड़ी देर के लिए रहता है इसके पास, ठीक है। और therefore it is called induced dipole, और पोलैरिटी भी इसकी बहुत कम ही रहती है, बट रहती है। अब पोलैरिटी होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है या फायदा क्या होता है हमको, वो ये है कि अच्छे खासे अनइवन मेटल सरफेस पे अगर जाता है, अनइवन मेटल सरफेस मतलब जिनका सरफेस बहुत ज्यादा प्लेन ना हो, ठीक है, तो उन पर इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ्स बने रहेंगे, और जहां भी इस तरह के ये पिक्स वगैरह रहते हैं ना, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? दैट्स माय नेचर। हमारा कुछ ज्यादा उसमें लेना देना नहीं है। और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, सरफेस पे हमारे पास थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस, मेटल सरफेसेस पे हमारे पास थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, और अंदर के साइड में नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से निकल करके बाहर में रहता है,
रेजोनेंस वगैरह पढ़ाते थे, मेटालिक बॉन्ड पढ़ाया था, पढ़ाते टाइम बताया था मैंने। मेटल एटम के साथ ऐसा रहता है कि मेटल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकल के रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि एक न्यूक्लियस के बदले ज्यादा न्यूक्लियस से अगर वो अट्रैक्ट होते रहेगा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। और इस फेनोमेना को फॉलो करते हुए एक्चुअली जितने भी मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाहर निकाल के रखते हैं जब वो मेटालिक फॉर्म में होते हैं। इसी की वजह से, इसी टेंडेंसी की वजह से सारे मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बस ये है, मे भी पहली बार अभी पता चल रहा होगा आप लोगों को। अब बाहर निकाल के रखते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर मान लो मेटल एटम है पॉजिटिवली चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा अंदर की तरफ होगा, दूसरे एटम के साथ भी शेयर हो रहा होगा, उन दोनों के बीच में कहीं तो रिसाइड कर रहा होगा। यानी सरफेस जो हुआ मेरा वो लगभग स्लाइटली पॉजिटिव सिस्टम हो जाता है। और ट्रांजिएंट डाइपोल की वजह से एक तरफ इसका निगेटिव हो गया थोड़े देर के लिए, तो जब ये निगेटिव हुआ और सेम इंस्टेंस पे अगर वो ये इस सरफेस को हिट कर रहा है, ठीक है, तो ये निगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, एंड दे फॉर्म अ weak set of bonds, and that is called adsorption of this hydrogen molecule over these metal surfaces. Am I making sense? Oh, uh, just 2 minutes. I'll just conclude it. Occluded hydrogen. ठीक है, यहाँ तक पढ़ा के खत्म करता हूँ। So that is called occlusion. That process is called occlusion. And हाइड्रोजन जो मेटल सरफेसेस पर एब्जॉर्ब होता है, सरफेस पर एब्जॉर्ब होना, सरफेस पर चिपकना, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। सो दैट एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। हेवी मेटल्स लाइक पीडी, पीटी, एयू, निकल, आयरन, और इन सब के ऊपर आयरन भी रहता है, आयरन के ऊपर भी ऑक्लूजन होता है। और ये सारे आप लोग को ध्यान होंगे, दीज आर ऑल वेरी गुड। जहां पर भी ऑक्लूजन हो रहा है इनको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये सारे अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं जहां भी हमको हाइड्रोजनेशन प्रोसेसेस करना होता है। दीज आर ऑल वेरी कॉमन हाइड्रोजनेटिंग कैटलिस्ट्स, ठीक है। ऑक्लूजन का रेट मेटल सरफेस एरिया और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाता है, ये लो टेम्परेचर पर ही फॉर्म करेगा या फॉर्म करके ब्रेक कर जाता है हाई टेम्परेचर रहेगा तो। ऑक्लूडिंग टेंडेंसी फॉर मेटल एटम्स, ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं है। This is something which you will have to remember. This will help you in deciding the reducing tendency of various, अलग अलग कैटलिस्ट्स के साथ हाइड्रोजन को यूज करके रिड्यूसिंग टेंडेंसी, जैसे अगर कोलाइडल पीडी ले रहे हैं और हाइड्रोजन ले रहे हैं तो ये एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा कंपेयर टू पीटीएन हाइड्रोजन और सिंपल पीडीएन हाइड्रोजन और निकल एंड हाइड्रोजन और आयरन एंड हाइड्रोजन सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट ऑक्लूजन के रेस्पेक्ट में, and this is used primarily, the occluded hydrogen is primarily used for hydrogenation. So that's it. ये रिएक्शन आप लोगों को पता होगा। This is unsaturated compound, organic compound reacts with hydrogen to form saturated. This is unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, hydrocarbon, और ये सैचुरेटेड होता है। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये होता है सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक
ठीक है. uh, okay, so we'll conclude today's lecture at this. The last type of hydrogen type is going to be nuclear spin isomers that we will discuss tomorrow. अच्छा, एक चीज और बताना था आप लोगों